نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، 3 رافضی جو وکیل اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وکیل فاطمۃ الزہرا ہیں، وکیل اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو محبان اہل بیت میں شمار کرتے ہیں۔ ان کی حالت ظاہر آپ یہ دیکھیے کہ ایک دوسرے کے اوپر کس طرح کیچڑ اچھالتے ہوئے، ایک دوسرے کے اوپر کس طرح تان و تشنی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج بڑا زبردست سوال ہے یہ، چونکہ فاسد العقیدہ بندہ ہے، اب یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ آصف الوی کا دفاع کرتے ہوئے ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے حضرت آدم کو خلق کیا تھا اور اس کی مٹی گوندی تھی، اس کا خمیر گوندا تھا، اور اس طریقے سے ایک بات کر رہا ہے، وہ انشاءاللہ ابھی آپ کو سنواتے ہیں۔ تو اب پہلے تو یہ سنیں نا، یہ کہہ رہا ہے کہ فقیر 6 سال سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے اور یہ 6 سال سے ہمارے حوالے کھا رہے ہیں۔ پہلے تو بیچارے کا کانفیڈنس چیک کریں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ایسا کانفیڈنس ہے اس بندے میں کہ ایسا جاہل ہے کہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، چاہے وہ کوئی اصولی مولویوں میں سے کوئی ہو یا ان کے چیلے چپاٹے جو بھی ہیں جن سے ہمارا اختلاف ہے، یا نواسب میں سے ہوں، الحمدللہ آپ لوگ 6 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے دلائل ہمیشہ سے یہ لوگ کھا جاتے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ان کے پاس۔ دلائل سے صرف نظر صرف ذاتیات کے اوپر آنا، یہ ان لوگوں کے پاس آخری حربہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ذاتی اٹیک کریں اور بس پھر اللہ خیر سلام۔ الحمدللہ ہمارے دلائل آج بھی ان پہ قرض ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں بدبخت جو دلائل بھی فقیر سے مانگتے ہیں، ہاں جی، اصولیوں میں سے ہی، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ دیکھ چکے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ جب فیس بک اور یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو اپنے آپ میں شیر بنے ہوتے ہیں۔ جی 6 سال ہو گئے ہیں ہم اس کے حوالے کھا رہے ہیں، 6 سال ہو گئے ہیں ہم اس کے حوالے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ 6 سال میں حوالے کیسے دیتا رہا ہے؟ پہلے بھی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، کہیں سے تو یہ لفظ ہی اڑا دیتا ہے، اور یعنی وہ اس نے تحریف کر دی، تحریف اس انداز سے کی کہ ایڈیٹنگ کر کے وہ لفظ ہی اڑا دیا۔ وہ ایک خطی چاپ جو تھی فقہ مجلسی کی، اس سے پورا لفظ اڑا دیا۔ اب وہ حوالہ ہم کیا کرتے ہیں، کھانا ہی بنتا ہے، کھانا ضعیفاً کھا گیا جناب۔ اب ان کا ایک اور درد ہے، وہ کیا جناب کہ یہ 6 سال سے ہمارے حوالے کھا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ حوالے کیسے دیتے ہیں اور ان حوالوں کا آخر میں کیا بنتا ہے، وہ پھر خدا کے حوالے ہی ہوتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں جناب کیا بیان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پاس کچھ نہیں کہتے، الحمدللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ حضرت علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جلد نمبر 2 میرے ہاتھ میں مطبوع ہندوستان کتاب موجود ہے، جلاء العیون۔ جلاء العیون جلد نمبر 2 میں علامہ مجلسی رحمہ اللہ یہاں پر صفحہ نمبر 27 پر خود مولا علی کا یہاں فرمان نقل کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے واضح طور پہ یہاں فرمایا کہ میں نے حضرت آدم کی طینت کو 40 روز تک اپنے ہاتھ سے گوندھ کر تیار کیا۔ مولا علی خود اس بات پر آپ کے سامنے 2 ٹوک اپنا موقف رکھ رہے ہیں کہ میں نے ہی آدم کے آٹے کو خمیر کیا، تو پھر آپ پتہ نہیں کہاں سے مولوی صاحب کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ جی جناب کہہ رہے ہیں کہ علامہ باقر مجلسی نے اپنی کتاب جلاء العیون میں ایک بات نقل کی ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل کتاب، ان کو بڑا شوق ہے کتابوں کا۔ تو یہ جناب پہلے ایک زرک صاحب آپ کی خدمت میں ایک چیز بیان کروں، صاحب نہیں کیونکہ اب آپ اتنی عزت کے قابل نہیں ہیں، زرک بات سنو، اصل کتاب رکھا کرو، اگر رکھنی ہے نا، کتابیں رکھنے کا شوق ہے، اصل رکھا کرو، اصل کتاب سے حوالہ ہمیشہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کتاب جس زبان میں ہو اسی کتاب میں حوالہ دیا جاتا ہے۔ اب جلاء العیون سے جناب نے ایک حوالہ پیش کیا ہے، انڈیا سے چھپی ہے، آپ نے ملاحظہ کیا، جلد 2 بتائی، صفحہ نمبر کیا بتایا جناب، آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا 27 پہ چلتے ہیں جی۔ سب سے پہلے تو کہ بھائی واقعی علامہ باقر مجلسی نے یہ بات کی ہے جی، ہم پہنچ گئے 27 پہ، بالکل جی زبردست، یہی حوالہ درست بتایا ہے۔ کیا ہے جی، میں نے قال امیر المومنین، یعنی امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں، میں نے حضرت آدم کی طینت کو 40 روز تک اپنے ہاتھ سے گوندھ کر تیار کیا۔ کون بیان کر رہے ہیں جی؟ علامہ باقر مجلسی، اپنی کون سی کتاب؟ جلاء العیون میں۔ اچھا جی بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں، پہلے تو آپ اس میں تلاشیں ہیں، آپ کو ملے گا ہی نہیں، علامہ باقر مجلسی نے لکھا ہی نہیں ہے۔ کس نے لکھا ہے پھر یہ؟ اگر یہ کتاب جلاء العیون میں علامہ باقر مجلسی پہ نہیں ہے، یہ بیچارہ تہمت لگا رہا ہے کس پہ؟ علامہ باقر مجلسی پہ۔ کس پہ تھوپ رہا ہے؟ علامہ باقر مجلسی پہ، ٹھیک۔ یہ بات کس نے لکھی ہے؟ ملاحظہ کریں جناب، یہ دوسری جلد ہے اس کا مقدمہ جو ہے، جو اس کا مترجم تھے، مترجم جو ہیں اس کتاب کے، آپ نے ملاحظہ کیا فرنٹ پیج پہ مترجم کون ہے؟ علامہ سید عبد الحسین مرحوم، یہ اس کو ترجمہ کرنے والے ہیں۔ جب ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 10 پر پہلے از قلم حقیقت رقم اندلیب گلستان زہرا بیگم ممتاز کوثر، کیا ہے جی یہ بریلوی کوئی خاتون، کیا ان کا اب نہیں جانتے ہم ان کو ہے کون، یہ عورت کا مقام، یہ چلتا ہے ایک صفحہ نمبر 1 سے، اور اس کے بعد یہ چلتا ہوا صفحہ نمبر کہاں تک آتا ہے؟
15 तक इन्होंने बयान किया। उसके बाद मुकदमा लिख रहे हैं, दूसरी जिल्द पे मुतरजिम साहब अपना मुकदमा लिख रहे हैं, जो सफ़ा नंबर 16 से शुरू होता है और चलते जाएं और दरमियान में वो 27 भी आ जाएगा। 89 तक मुतरजिम ने जो है वो अपना इल्म झाड़ा है जनाब। मुलाहिज़ा फरमाएं, आगे में कहते ख़त्म शुदे यहाँ पर सैयद ज़हूरुल हसन कोसर बिन सैयद महर अली शाह अफ़ल्लाहु अन्हुमा, अच्छा ख़तीब शिया और वो फ़लाँ रोड मुल्तान जहाँ से भी हैं ये, और आगे से बाब अव्वल, यहाँ से अल्लामा बाक़िर मजलिसी की जलाउल उयून जो है वो शुरू हो रही है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से उन्होंने नकल किया है और उनकी जब सीरत को बयान करते हैं, उनकी तारीख़ को जब बयान करते हैं वहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि अल्लामा बाक़िर मजलिसी की इबारत ही नहीं है। अब ज़र्क अब ऐसा करो कि ये हवाला ढूंढ के लाओ कि अल्लामा बाक़िर मजलिसी ने जलाउल उयून में कहाँ कहा है, ये तो उसके बरक्स निकल आया। इसी तरह ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। ये मोमिन सादे हमारे, वो बेचारे क्या है, किताबों को देखते हैं, वही किताबें दिखा रहा है, एक के बाद एक किताब दिखा रहा है, चाहे उस किताब का रब्त बनता है नहीं बनता, चाहे उस असल किताब को आप जाकर देखें उसमें है ही नहीं, वो चीज़ ही नहीं है। आपको पहले भी दिखा चुके हैं इसकी ख़यानतें। ये इतना बड़ा खाइन है, इतनी ख़यानतें करता है, इसकी ख़यानतें अगर हम निकालने बैठ जाएंगे 100 क्लिप बन जाएंगे। लेकिन हम इसके 2-4 नमूने आपकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि आप मोमिनीन आगाह हों और ऐसे जाहिल शख्स से किनारा कशी इख्तियार करें, ऐसे फासिदुल मज़हब शख्स से किनारा कशी इख्तियार करें कि जो अल्लामा बाक़िर मजलिसी जैसे मुहद्दिस पर क्या है जी तोहमत बांध रहा है कि अल्लामा बाक़िर मजलिसी ने बयान किया, जबकि आपकी खिदमत में ये दोनों किताबें फ़ारसी से भी हमने कहा है कि ये दिखा दे कि इस किताब में कहाँ लिखा हुआ है, ये जलाउल उयून से दिखाया। अब ये इसके ऊपर हमारा हवाला उधार हो गया। ये कहता है हवाले खा जाते हैं हम, ठीक है, हम तो चलो खा गए भाई, आप खुश हो जाएं, आपका कॉन्फिडेंस है, गरीब बात है, आप हम उस पर बाकी रखते हैं, खा गए हम हवाले, अब आप हमारा हवाला नहीं खाना, निकाल के लाना। जी क्यों? अल्लाह कुरान में एक और जगह कहता है लईसा कमिस्लिही शै। मैंने कहा माशाअल्लाह, क्या तर्जुमा है जी इसका? जी अल्लाह जैसी कोई शय नहीं है। मैंने कहा अच्छा, सुभान अल्लाह, आपके अंदाजे बयान से वाज़ेह हो रहा था, अब वाकई यकीन हो गया कि तुझे अरबी कख नहीं आती, तुझे अरबी कख नहीं आती, तुझे अरबी कख नहीं आती। हाँ चले भैया, कुरान के एक सफा खोल के सुनाओ सबको, एक सफा खोल दो कुरान के, कुरान का एक सफा सुना दो, कुरान पढ़ के, कौन सा पढ़ो? जो भी है, आप जो भी खोल दो तुम, अभी कुरान खोल दो, जो सफा निकलता है। अभी कुरान नहीं है मेरे पास, जो मैं बात कर रहा हूँ कुरान उठाओ, लाइब्रेरी से उठाओ, कुरान पढ़ के सुनाओ, एक सफा कुरान पढ़ के सुनाओ। और भाई कहाँ तो हम चौथे मल्ले 10 मिनट यहाँ पे हदीस सुनाऊंगा, तुम जाके कुरान लेके आओ, कुरान लेके आओ, कुरान लेके आओ, चौथे मैं इंतजार करता हूँ, जाके लेके आओ। रंग उड़ गया इसका, सफेद रंग उड़ गया इसका, कुरान नहीं पढ़ना आता इसको, रंग उड़ गया इसका, कुरान नहीं पढ़ना आता इसको, रंग उड़ गया इसका, कुरान नहीं पढ़ना आता इसको। देखें, आपने जो अभी अखलाक का मुजाहरा किया है ना, अभी जो आपने अखलाक का मुजाहरा किया है ना, तो इससे तो आपसे गुफ्तगू करने की अहलियत भी आप रखते हैं किसी इंसान से, वो भी उस पर हमें शक होता है भाई। बहरहाल अभी मैंने 1.5 घंटे तकरीर की है सिस्तानी के कुफर पर, तेरे मर्जे के कुफर पर। आप उस पर गुफ्तगू करना चाहेंगे, उसको रद्द करना चाहेंगे, उसके सुगरा कुबरा को? आपने कबूल नहीं की, अब आपने शर्त रखी पे, बिल्कुल कबूल किया है, बिल्कुल आपकी दावत को कबूल किया है, बशर्ते के सामने से आपके चैनल में उलमा हैं, वो क्यों नहीं आते? अगर मैं गाली देता हूं, अगर गाली मैं देने वाला हूं तो आप क्यों आए? ठीक है ना, अगर मैं गाली नहीं देता तो अपने उलमा को लेके आओ, खज़वीनी को लेके आओ। फिर मैंने आपकी दावत कबूल की है, बशर्ते ये कि आप चिट्ठी लेके आए नासिर मकारिम से, सिस्तानी से, किसी भी मर्जे से, वो आपको मानते हैं एक आलिम की हैसियत से। आपको कोई जब मानता ही नहीं तो मैं क्यों मान लूं? आप एक मुतरजिम है, आप एक बदतमीज मुतरजिम है, यहाँ पे आपने बदतमीजी का आपने सबूत दे दिया भाई, आप एक मुतरजिम की हैसियत है। फिर भी मैं आपको कहता हूं कि अगर कोई इस मौजू पे कोई रद्द है तो पेश करो। अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाई, आपको अभी जैसे आप राज्य के ऊपर बातें करते हैं, उस वक्त आप अकेले बैठे बात कर रहे होते हैं ना, कोई जवाब देने वाला नहीं होता कि उसने ये कर दिया वो कर दिया। स्टोरियां हीर रांझा की आप सादत हसन मिनटों के आप किस्से सुना रहे होते हैं। आज आपको जब सामने बातें सुनने को मिली हैं तो पता चला है कि कैसे बंदा तवे पे आता है और उछलता है। अर्ज़ है ना, अर्ज़ है, मैंने आज सिस्तानी के कुफर पे जो दलाइल दिए हैं उसका रद्द करें आप, बिस्मिल्लाह, आपके पास बड़ा इल्म है भाई, रद्द करो, बिस्मिल्लाह, अभी रद्द करो ना। अभी मुझ पे जातियात पे हमले के बजाय कि मैं एक बुरा आदमी हूं, मैंने फलान किया चपरासी, अल्लाह लानत करे झूठे पर, अल्लाह मुंह काला करे झूठे पर, मुंह काले का झूठे का मुंह काला कर दे। अच्छा अभी आप उसको दलील ला दो ना। आपने कहा एक मिनट जातियात की, भाई ये बंदा बात कर रहा है, नाजरीन देखिएगा आज इस बंदे की कैसे आप, ये बंदा तप रहा है। ये जब मैं तब नहीं रहा, तब तो आपके चेहरे से पता चल रहा है। तानी साहब का जो भी मुझे पता है ट्रैक रिकॉर्ड उनका भी ठीक नहीं है, ये जातियात नहीं होती, कोई सबूत आज तक आपने दिखाया? तो जब आप खुद कहते हो कि भाई साहब, जब आप कहते हो
कि मर्जे के लिए अदालत शर्त है। ओ भाई, मर्जे के लिए अदालत शर्त है। तुम खुद कहते हो अगर मर्जा आदिल नहीं उसकी तकलीद नहीं कर सकते ना, तो फिर उसके जातियात आ जाते हैं उसमें। तो फिर दलील भी देना, मुंह के गोले छोड़ने से तो मैंने सिर्फ इतना मैंने कहा कि मैंने इतना सिर्फ उतना सुना है उसके मुतालिक कि उसका इसके बैकग्राउंड, लेकिन मैंने ये भी कहा उसका कुफ्र हमारे उसका कुफ्र हमारे सामने, मैंने 1.5 घंटे की तकरीर की है कि वो क्यों काफिर है, उसकी बिदात मैंने सामने रख दी है, उसका रद्द करो ना तुम। सिस्तानी साहब के मुतालिक मेरे भाई मेरे तकरीर मौजूद है, आज तकरीर मैंने उसके कुफ्र पे किया, आप रद्द करो ना। सिस्तानी साहब के मुतालिक मेरे भाई मेरे तकरीर मौजूद है, आज तकरीर मैंने उसके कुफ्र पे किया, आप रद्द करो ना। तो भाई आप जातियात की बात कर रहे थे जी, ये मेरी जातियात पे आ गया। ओ भाई जातियात पे आपने बात की तभी मैंने आगे बात की है, इसलिए आपको ठंड पड़ गई होगी। मैंने आपकी जातियात पे कोई बात नहीं किया, मैंने आपकी जातियात की तरफ कोई बात नहीं की। आपकी यहाँ पे आए ना भाई साहब, मेरे मुखालिफिन का यही है, या इनके अव्वल सिस्तानी भी आ जाए ना, यहाँ पे इनके पास दलील इल्मी दलील नहीं है, या यही कहेंगे कि आपने क्या कहा था, आप टैक्सी ड्राइवर हैं, आप खूबजतिया से निकाला गया था, झूठ पे जो आप MI6 के एजेंट हैं, पता नहीं इस तरह की झूठी बातें। और भाई कोई इल्मी दलील आओ ना, तुम कुम में रहते हो, पीछे किताबें किस लिए रखी हैं? और भाई पीछे किताबें ये सजावट के लिए, या तुमने मुताला भी किया किसी किताब का? और इज्तिहाद तकलीद पे बात करने आए हो ना, इस झूठी बातों के अलावा आपके पास कुछ है? इज्तिहाद तकलीद पे बात करो ना, मैदान खुला है, कबूल करो दावत, लग पता जाएगा मैदान में। अभी दावत अभी है, दावत अभी, बिस्मिल्लाह। मैंने अभी बात किया ना, 1.5 घंटे बात किया, सब कुरान से सुन्नत से अलावा मैंने एक जुमला नहीं बोला सिस्तानी के कुफर पे। मैंने इदमान लगा मर्जियत कुफर है, ये मर्जियत का मुकल्लिद है। और भाई तुम मर्जियत का दिफा यही बनता है, कल लायरी टैक्सी ड्राइवर था, मर्जियत का दिफा यही है, कल लायरी को हुज्जतिया से निकाला गया। तुम आ जाओ ना, मर्जियत पे बात करते हैं ना, बिस्मिल्लाह करो, देखते हैं तेरे पास कितना इल्म है। और मर्जियत पानी पी लो। आप भाई साहब एक हदीस पढ़ो, एक हदीस पढ़ के सुना, मुझे पता चले तुम्हें हदीस पढ़ना भी आता है। एक हदीस खोल दो, एक हदीस काफी की खोल दो, पढ़ दो, मैं देखूं तुझे पढ़ना भी आता है। आप अहले सुन्नत की किताबों से गलत अरबी में इबारतें पढ़ते हैं, फिर अहले सुन्नत की किताबों से गलत अरबी में इबारतें पढ़ते हैं, फिर अहले सुन्नत की किताबों से गलत अरबी में इबारतें पढ़ते हैं, फिर आप पढ़ दो ना, आप पढ़ के सुना दो। इधर जमात उमरिया के उलमा आते हैं, नहू सर्फ में बड़े माहिर होते हैं। इधर जमात उमरिया के उलमा आते हैं, नहू सर्फ में बड़े माहिर होते हैं। इधर जमात उमरिया के उलमा आते हैं, नहू सर्फ में बड़े माहिर होते हैं, बड़े माहिर होते हैं। वो एतराज नहीं कर सकते मुझ पर, वो एतराज नहीं कर सकते मुझ पर, वो एतराज नहीं कर सकते मुझ पर, ठीक है ना। आप एक पढ़ के सुना दो, पढ़ के सुन, यहाँ पे वो अहादीस। अच्छा ये अब मैं इसके सामने नहीं कहता ना, कुछ छोड़ दें, आप कुछ निकालो अपनी किताब, एक हदीस पढ़ के सुना दो, हम देखें आपको हदीस पढ़ना आता है। नहीं आता ना, इसका चेहरे का रंग देखो, रंग उड़ गया इसका, रंग उड़ गया इसका, रंग उड़ गया इसका। जिसे पढ़ो यारी वाला ये हो गया, जर्क नकवी पे जुमला हो गया, पुराना हो गया, नया जुमला लेके आओ। नया हदीस पढ़ना कभी पुराना नहीं होता, हदीस पढ़ना कभी पुराना नहीं होता, कुरान पढ़ना कभी पुराना नहीं होता। तुम्हें नहीं पढ़ना आता, तुम इधर मुनाजरे के लिए मुनाजरे की दावत देते हो ना, अभी आ जाओ ना, हम देखें आपको इज्तिहाद तकलीद में क्या आता है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरे क्लिप्स मौजूद है मेरे चैनल पे, मैंने आज तक उर्दू इबारतें पेश नहीं की, तमाम अरबी किताब। बात सुन लो, चलें आप बड़े फाजिल है ना, मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो हूँ, आप फाजिल हैं। इज्तिहाद तकलीद पे कुछ सवाल करो ना, मुनाजरा करो ना, पूरी मेरी दावत कबूल करो, फिर पता चलेगा। अभी मुनाजरा नहीं करते, लेकिन अभी सवाल जवाब पता चलेगा कि आपके पास है क्या चीज। किस बात से डर रहे हो? ठीक है, सवाल जवाब भी नहीं करेंगे भाई, ये सिर्फ इसीलिए आए थे भाई गाली देने के लिए, सवाल जवाब इल्मी नहीं करेंगे, गाली देने के लिए आए थे। यार साहब कबूल कर रहे हैं मुनाजरे की दावत या नहीं कर रहे? आपके चैनल के उलमा मेरे सर आंखों पर, आपके चैनल के मुतरजिमीन से मैं मुनाजरे का उनको अहलियत ही नहीं समझता। ठीक हो गया भाई, नाजरीन आप सवाल जवाब करेंगे, बिस्मिल्लाह अभी गुफ्तगू करते हैं। एक हदीस पढ़ के सुनाओ ना, एक हदीस भी इसको नहीं आता। दी थी अल्लाह यारी साहब कहते हैं ये सिर्फ इसीलिए आयत है कि यहाँ पे गाली दे के चले जाएं, ठीक है ना। मैंने कहा था ना, मैंने आज के प्रोग्राम के आगाज में क्या कहा था कि आज के प्रोग्राम में कुरान और सुन्नत से मर्जियत का कुफ्र साबित करूंगा, और मेरे मुखालिफिन को सिर्फ गाली आता है, सिर्फ तौहीन आता है, और कहेंगे कि अल्लाह यारी ने तौहीन किया। इनके अलावा, इनके पास नारों के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं, इन अफराद के पास। बड़ी चीज थैंक यू कर रही है ना, तो मैं थैंक यू सर। मर्द मुनाजरा करें, आप उधर आपको अगर मर्दों की जरूरत है, मर्दों की बेज़्यादा जरूरत पड़ी है, तो नेहरूगा में चले जाऊं, तो तुर्क वगैरह आपको मिल जाएंगे आपके इसको मर्द की। चले ठीक है भाई, चले जाए, खुदा हाफिज आपका, अल्लाह हाफिज आपका। चलो, इसको मर्द की जरूरत है भाई। अगर आप इल्मी गुफ्तगू करना चाहते हैं ना, तो इज्तिहाद तकलीद पर भी मैं हाजिर हूँ,
इज्तिहाद तकलीफ पे मैं भी हाजिर हूँ। ओके भाई वाले साहब, कहाँ होते खुदा तुर्क वाले जी। कहाँ होते क्या तुर्क वाले आपके वो कहाँ पे होते हैं निरुगा में, जिनके साथ आपके ताल्लुक है, जिनका बता रहे हैं आप, कहाँ पे होते हैं निरुगा? जी नहीं मालूम, तुर्क वगैरह होंगे वहाँ पे, अभी तो कह रहे थे तुर्क कि होंगे ना। आते हैं आपको मर्द निरुगा। की जरूरत है, उधर जाए यजदान शहर में जाए, कहीं मिल जाएगा आपको। हाँ अभी इसको भाई मर्द की मैंने कहा जरूरत था पड़ी है। इसको मर्दों की बड़ी जरूरत पड़ी है। आप ये वाह, वो उलमा की सुन्नत पे चलेंगे ना, उलमा के खामिनी की सुन्नत पे उनके इनका इमाम वली फकी जो है ना, मर्दों की जरूरत है। चले भाई, चले भाई साहब, प्लीज। ओके, थैंक यू सर। हाँ ठीक, अल्लाह आपको अल्लाह हाफिज। सलामत। जब भी चाहे ना इल्मी गुफ्तगू करें, हम हाजिर हैं। जब भी चाहे इधर तशरीफ लाएं। मैंने आज के प्रोग्राम में इस शख्स से 10 दफा कह दिया कि इज्तिहाद तकलीफ पे गुफ्तगू करो, इल्मी तौहीन को छोड़ दो। ये नहीं करना, नहीं करना। एक हदीस सुना दो, नहीं कर रहा भाई, ठीक है ना, नहीं कर रहा, बस खत्म है। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इतनी तबीयत साफ कर दी।